Hello everyone. So today we will revise the topic that is premature labor, which is also known as preterm labor, right? So this topic I have already taught you in class. So this will be a revision session for the same. So let's start with it. First of all comes the introduction. So, premature labor is generally a labor that occurs after 20 weeks of gestation and before 37 completed weeks of gestation. ठीक है, तो हम premature labor कब बोलते हैं? When the labor occurs after completed 20 weeks of gestation and before completed 37 weeks of gestation, right? तो 20 weeks के बाद और 37 weeks से पहले अगर लेबर पेन पेशेंट को होता है, सो दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर प्रीमेच्योर लेबर. नेक्स्ट कम्स द डेफिनेशन. So preterm labor is defined as one where the labor starts before the 37th completed week. तो 37 week complete होने से पहले, ठीक है. That means it will be like less than 259 days, right? Counting from the first day of last menstrual period. ठीक है. So as we all know that EDD we are calculating from the LMP, right? First day of LMP. सो फर्स्ट डे ऑफ LMP से स्टार्ट करते हुए 37 वीक कंप्लीट होने से पहले अगर पेशेंट को लेबर पेन होता है, सो दैट विल बी टर्म्ड एज प्री टर्म लेबर. Then again, this is the definition given by WHO that it is the onset of labor prior to the completion of 37 weeks of gestation in a pregnancy beyond 20 weeks of gestation. So after 20 weeks and before 37 completed weeks, if the patient is experiencing uterine contractions at a regular interval, like ठीक है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? preterm labor. Then comes etiology. So in about 50% the cause of preterm labor is not known. 50% जो cases होते हैं preterm labor के exact cause उसमें हमें नहीं पता है, but there can be some risk factors like history, then complications in present pregnancy, then some factors can be iatrogenic, another can be idiopathic, right? So we will be discussing one by one. So सबसे पहले आपका आता है हिस्ट्री. सो इफ़ द वुमेन इज़ हैविंग प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म डिलीवरी, सो देयर आर चांसेस कि नेक्स्ट टाइम जब वो कंसीव करती है, सो देयर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ हर हैविंग प्री टर्म डिलीवरी. Then there can it can involve recurrent UTI if the woman has experienced recurrent urinary tract infections, so that can be the risk factor for preterm labor. Then smoking is like considered to be a factor which causes preterm labor. Then other factors include low socioeconomic and nutritional status of a woman. Then next comes माल प्रेजेंटेशन. ठीक है, माल प्रेजेंटेशन जो है दैट कैन ऑल्सो बी अ कॉज फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडीशन दैट इज़ प्रीटर्म लेबर. ठीक है, माल प्रेजेंटेशन में हम कहा जाता है लाइक इफ़ द फीटस इज़ इन ट्रांसवर्स लाई, ठीक है, और जो फीटस है वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में ना होके किसी और प्रेजेंटेशन में है, जैसे कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में है विथ एज यू कैन सी इन द पिक्चर इट इज़ अ फ्रैंक ब्रीच. फ्रैंक ब्रीच में क्या होता है? द लेग्स आर एक्सटेंडेड लाइक दिस. ठीक है, so these can cause preterm labor. Then if there is previous history of abortions or preterm labor, so the next time if the lady is conceiving, so chances of this increases. Then complications in present pregnancy. ठीक है, complications in present pregnancy में हम इसको 3 causes के basis पे हम इसको डिस्कस करेंगे. मैटरनल, फीटल एंड प्लेसेंटल. ठीक है, प्रेजेंट प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं ये हम. सो मैटरनल में आ गया प्रेगनेंसी, देन यूट्राइन एनोमलीज, देन मेडिकल एंड सर्जिकल इलनेसेस, देन लास्ट आ जाता है जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, राइट. सो प्रेगनेंसी के अंदर पहले क्या क्या कॉजेज हैं? सपोज इफ द वुमन इज़ हैविंग infection during pregnancy, it can lead to preterm labor. Then preeclampsia, if the woman is preeclamptic, right, that means कि उसका जो blood pressure है that is more than 140/90 during the gestation, so that particular condition can cause preterm labor, right.
देन इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, मैटरनल कंडीशंस में आ जाता है ये, मैटरनल रिस्क फैक्टर्स में इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, अगर उसका सर्विक्स जो है मदर का, इफ़ इट इज़ इनकॉम्पिटेंट, ठीक है, सो दैट कैन कॉज प्रीटर्म लेबर, राइट. देन नेक्स्ट कम्स माल फॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस. यूट्रिन माल फॉर्मेशन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ टॉपिक डिटेल में. सो इफ़ देर इज़ एनी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी इन द शेप ऑफ द यूट्रस, सो दैट कैन कॉज प्रीटर्म लेबर. स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ कौन सी हो सकती हैं? लाइक यूनिकॉर्न्यूट यूट्रस हो सकता है लाइक दिस, ठीक है, बाइकॉर्न्यूट यूट्रस हो सकता है लाइक दिस, डबल यूट्रस हो सकता है. डबल यूट्रस को हम और क्या बोलते हैं? डाइडेल्फस यूट्रस, या फिर सेप्टेट यूट्रस. अगर ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है, सो दैट कैन कॉज द वुमेन टू एक्सपीरियंस प्रीटर्म लेबर. देन नेक्स्ट कम्स पॉलीनेफ्राइटिस, ठीक है. इफ़ द वुमेन इज़ लाइक experiencing polynephritis, she is having polynephritis, that is an infection in the kidney, ठीक है, या उसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस है. टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन विच इज़ कॉज्ड बाय अ पैरासाइट. दैट पैरासाइट इज़ मेनली लाइक सीन इन द फीसिस ऑफ कैट और इन द कंटामिनेटेड फूड, ठीक है. सो अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस को प्रेगनेंसी में हुआ है, सो दैट कैन लीड टू दिस कंडीशन. देन नेक्स्ट कम्स फीटल फैक्टर्स, ठीक है. फीटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है? सबसे पहले आपका आता है मल्टीपल प्रेगनेंसी. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, देर आर 2 fetus इनसाइड द यूट्रस, ठीक है. वन इज़ इन द ट्रांसवर्स लाइन, अदर वन इज़ इन द फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है. So that condition can cause preterm labor if there is multiple pregnancy along with malpresentation of the fetus. Then congenital malformation of the fetus, like if the fetus is having spina bifida or hydrocephalus, you can say, ठीक है. तो there are chances of preterm labor. Then intrauterine death of the fetus. So if there is intrauterine death of the fetus, it can also cause sometimes it can lead to premature labor or preterm labor. Then next comes placental factors which can cause preterm labor, that is infarction. Infarction, अगर placental का कोई part जो है, if it is infarcted, then that can cause preterm labor. Then next आता है thrombosis. So if there is any kind of thrombosis, so that can cause the condition. Then placenta previa and abruptio placenta. Placenta previa is what? That is low-lying placenta, and placenta abruptio is premature septation of the placenta. So if out of these 4 conditions in the placenta, if anyone is present, then that can cause preterm labor. These all are the risk factors, right? Then next comes iatrogenic factors, ठीक है. iatrogenic factors कौन से फैक्टर्स आते हैं इसके अंदर? जैसे कि इलेक्टिव इंडक्शन विद रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ जेस्टेशनल पीरियड. समटाइम्स you might have seen in the clinical postings that if the person is illiterate, she won't be remembering the her last menstrual period date, ठीक है. तो उसे नहीं याद होगा, तो एस्टिमेट से वो बताएगी, तो उससे जो कैलकुलेशन है जेस्टेशनल पीरियड की या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की, वो भी गलत हो जाती है, ठीक है. तो उससे क्या करेंगे हम? द डॉक्टर विल थिंक लाइक दिस कि जो जेस्टेशनल पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, बट ड्यू टू द रॉन्ग LMP, ठीक है. सो जो EDD कैलकुलेट हुई होगी वहाँ पे, दैट कैन बी रॉन्ग. और उस केस में अगर हम इलेक्टिव इंडक्शन कर देते हैं लेबर पेन की, सो दैट गोज़ अंडर प्रीटर्म लेबर. Then next comes idiopathic. Idiopathic में आपका जाता है some factors like premature effacement of the cervix. Like we have studied in the incoordinate uterine action में कि there is hypertonic state of the uterus, ठीक है. So if the uterus is hypertonic, that will cause premature effacement of the cervix, which will cause preterm labor. Then next है early engagement of the head, ठीक है. So early engagement of the head is another reason for this preterm labor. Then other risk factors involve low BMI, ठीक है. So if the woman is lean, ठीक है, if she is malnourished, then you can say she is prone to develop preterm labor in her pregnancy. Then short maternal height is another risk factor. Then history of spontaneous preterm
बर्थ, ठीक है, लाइक उसने पहले भी उसकी हिस्ट्री थी प्री टर्म डिलीवरी की, सो देर आर चांसेस ऑफ हर डेवलपिंग द सेम इन द कॉन्जिक्यूटिव प्रेगनेंसीज। दैन नेक्स्ट आता है बैक्टीरियल वेजिनाइटिस। तो अगर उसे लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है वेजाइना में, दैट कैन बी द कॉज। देन सिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया, ठीक है, सो इफ इट इज़ देयर देन दैट कैन कॉल ऑल्सो बी अ रिस्क फैक्टर। देन लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, ये हमने अभी डिस्कस किया है। देन है शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ। नॉर्मल सर्वाइकल लेंथ आपको मालूम है 2.5 सेंटीमीटर्स होती है। सो इफ द लेंथ ऑफ द सर्विक्स इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, सो देर आर चांसेस ऑफ प्रीटर्म लेबर, राइट। देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं प्रेगनेंसी में जो कि कॉज कर सकते हैं प्रीटर्म लेबर को, जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी अभी हमने डिस्कस किया। देन यूज़ ऑफ फर्टिलिटी मेडिकेशंस, लाइक अगर लाइक वुमेन को कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी एंड शी हैज़ टेकन सम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट फॉर बिकमिंग प्रेग्नेंट, राइट, सो देयर आर चांसेस ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी। Then high blood pressure is the another cause. Then preeclampsia, maternal diabetes mellitus, ठीक है, that is very much important. The mother is diabetic, right, so there are chances of her developing preterm labor. Then asthma and thyroid disease, so these all conditions are the influencing factors during pregnancy which can cause preterm labor. देन हार्ट डिसीज़ आ जाते हैं, यूट्राइन मालफॉर्मेशंस आती हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ में, प्लेसेंटा प्रीविया, एब्डॉक्शियो प्लेसेंटा है। देन अदर देन दिस पॉलीहाइड्रोएमनियोस और ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। पॉलीहाइड्रोएमनियोस में क्या होता है, देयर विल बी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एंड ओलिगो में देयर विल बी deficient amniotic fluid, right, so these both conditions can lead to preterm labor. Then anxiety and depression plays a major role when it comes to preterm labor. Then use of tobacco and cocaine and smoking also, ठीक है, these all can lead to preterm labor. Then even excessive drinking of liquor, ठीक है, excessive alcohol consumption during pregnancy can be the cause. And if the baby is having some congenital malformation, वो अभी हमने डिस्कस किया था, if the baby is having like spina bifida or you can say hydrocephalus, meningomyosine जो spina bifida में आ जाता है, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई बर्थ डिफेक्ट है बच्चे में, so that can cause this particular condition. Sign and symptoms, right, so sign and symptoms में आपका आ जाता है बैक एक। प्रीटर्म लेबर के साइन एंड सिम्टम्स क्या है, देयर विल बी बैक एक, देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शंस एवरी 10 मिनट्स, ठीक है, पेशेंट में एक्सपीरियंस वन कॉन्ट्रैक्शन, एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर एवरी 10 मिनट, तो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस उसको होंगी विद और विदाउट पेन। देन क्रैम्पिंग इन द लोअर एब्डोमेन विल बी देयर। देन मेंस्ट्रुअल लाइक क्रैम्प्स होंगे पेशेंट को, विच विल फील लाइक गैस पेन, जैसे गैस फॉर्म होती है ना वैसे, ठीक है। Then fluid leaking from the vagina is the another sign and symptom, ठीक है। Then जिसे हम शो भी बोल सकते हैं, ठीक है, शो क्या होता है, वो लेटर स्टेजेस में आता है, ठीक है, म्यूकस के साथ ब्लड मिक्स हुआ होता है, जो प्लग होता है सर्विक्स के पास, ठीक है, वो सर्विक्स को जो प्लग करके रखता है ना, वो डिस्चार्ज हो जाता है एट द टाइम ऑफ लेबर, सो दैट इज़ शो। सो देयर विल बी फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम द वजाइना, हो सकता है कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई हो, ठीक है, या फिर बाद में शो भी प्रेजेंट होता है। देन नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया आर ऑल्सो दी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रीटर्म लेबर, एंड अलॉन्ग विद दैट इंक्रीज प्रेशर इन द पेल्विस इज द साइन, then symptom, then increased vaginal bleeding is the symptom, regular uterine activity, then vaginal spotting will be there, and there will be pelvic pressure. Then next comes the diagnosis of preterm labor. So diagnosis में आपका आता है regular uterine contractions with or without pain at least 1 in every 10 minutes, ठीक है, पेशेंट को रेगुलर यूट्राइन पेन होंगे इसके अंदर, और हर 10 मिनट के बाद एटलीस्ट एक पेन जो है पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट देयर विल बी डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स दैट विल बी मोर देन और इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्योंकि डायलेटेशन हो रही है तो साथ में इफेसमेंट भी होगी। इफेसमेंट क्या होता है, थिनिंग ऑफ द सर्विक्स यू कैन से, ठीक है, सो दैट विल बी 80%, ठीक है, इफेसमेंट जो होगी कितनी हो जाएगी 80%। देन लेंथ ऑफ द सर्विक्स, लेंथ ऑफ द सर्विक्स जो है दैट विल बी लेस देन
2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट कैन बी इक्वल टू और लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि वेन एवर देर इज़ डायलिटेशन, ठीक है, उसके साथ देयर विल बी शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। सो इसमें जो सर्विक्स की लेंथ है वो भी कम होती रहेगी। देन पेल्विक प्रेशर, patient will report of pelvic pressure, backache, and there will be visible vaginal discharge of or the bleeding from the vagina, ठीक है। पहले शो आता है, उसके बाद bleeding will be there, right? Then next comes investigations. Investigation preterm labor की हमने करनी है। There will be need for investigations like full blood count करेंगे, routine uterine analysis करेंगे, culture sensitivity करेंगे, ठीक है। देन वी कैन गो फॉर सर्वाइको वजाइनल स्वैब, उसको हमने कल्चर भी करना है फॉर द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। देन वी कैन ऑल्सो यूज़ दैट स्वैब फॉर डिटेक्टिंग फिब्रोनेक्टिन, ठीक है। फिब्रोनेक्टिन क्या होता है? दैट इज़ अ प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट, या आप कह सकते हैं एक तरह का प्रोटीन है जो कि बाइंड करता है फीटस की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसको डेसिड्यूआ के साथ, ठीक है। सो ये हम चेक करते हैं सर्वाइको वजाइनल सिक्रीशंस के अंदर, ये भी आगे डिटेल में बताएंगे आप। देन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ग्लूकोज लेवल्स, वो भी हमने चेक करने हैं व्हेन टोकोलिटिक एजेंट्स आर टू बी यूज्ड, क्योंकि टोकोलिटिक एजेंट्स जो होते हैं उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दैट आर रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, ठीक है। तो टोकोलिटिक एजेंट जब हमने यूज़ करनी है तो इसके लिए हमने पहले से सीरम इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज लेवल जो है वो पेशेंट के चेक करेंगे। देन यूएसजी हम ज़रूर करेंगे फॉर नोइंग द फीटल वेलबींग, सर्वाइकल लेंथ एंड प्लेसेंटल लोकलाइजेशन, ठीक है। एंटीरियरली अटैच है प्लेसेंटा, है ना, वो देखने के लिए। देन नेक्स्ट है फिब्रोनेक्टिन, जो भी आपसे बात करी थी मैं। फिब्रोनेक्टिन में क्या होगा? इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन दैट बाइंड्स द फीटल मेम्ब्रेन्स टू द डेसिड्यूआ। डेसिड्यूआ क्या होता है? एंडोमेट्रियम ऑफ अ प्रेग्नेंट यूट्रस, ठीक है। तो ये डेसिड्यूआ से अटैच करता है प्रोटीन किसको? फीटल मेम्ब्रेन्स को, राइट। सो नॉर्मली ये जो फिब्रोनेक्टिन है, ठीक है, ये 22 वीक से पहले जो होता है सर्वाइको वजाइनल डिस्चार्ज में प्रेजेंट होता है, उसके बाद 37 वीक्स के बाद प्रेजेंट होता है, ठीक है। पहले तो 22 वीक्स से पहले ये प्रेजेंट होगा सर्वाइको वजाइनल डिस्चार्ज के अंदर। आफ्टर दैट 37 वीक्स के बाद ये रीअपीयर होता है सर्वाइको वजाइनल डिस्चार्ज के अंदर। तो अगर ये फिब्रोनेक्टिन जो है सर्वाइको वजाइनल डिस्चार्ज के अंदर जब हमने स्वाब लिया, उसके अंदर अगर हमें ये 24 वीक से लेके 34 वीक्स के बीच में मिल गया, दैट इंडिकेट्स फॉर प्रीटर्म लेबर, ठीक है, फिब्रोनेक्टिन। So that is a kind of protein which binds the fetal membranes with the decidua. Then next comes the management. After diagnosis and investigation, we will go for management. So it includes prevention if possible, ठीक है। प्रिवेंट कर सकते हैं अगर, तो हम प्रिवेंट करेंगे। देन अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करेंगे अगर इसको प्रिवेंट करना पॉसिबल नहीं है, राइट। देन अगर हमें लगता है कि प्रिवेंट करना पॉसिबल है, तब हम फिर इसको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं विद द यूज़ ऑफ टोकोलिटिक एजेंट्स, राइट। एंड इफ़ इट इज़ नॉट, वी आर नॉट एबल टू प्रिवेंट इट, देन वी विल गो फॉर दिस डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। एंड बेबी को फिर हमने नियोनेटल केयर जो है वो प्रोवाइड करनी है फॉलोइंग बर्थ। देन नेक्स्ट कम्स प्रिवेंशन ऑफ प्रीटर्म लेबर, हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस कंडीशन। देन सबसे पहले आता है प्राइमरी केयर, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ प्रीटर्म लेबर बाय रिड्यूसिंग द हाई रिस्क फैक्टर्स, एग्जाम्पल इन्फेक्शन, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में वुमेन को इन्फेक्शन किसी तरह का ना हो, उसके से हम उसको प्रिवेंट करेंगे एंड हेंस वी कैन प्रिवेंट द प्रीटर्म लेबर। देन नेक्स्ट है सेकेंडरी केयर, इट इंक्लूड्स स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट, एग्जाम्पल टोकोलिटिक। सेकेंडरी केयर का मतलब क्या है? प्रीटर्म लेबर जो है वो हो गया है, स्टार्ट हो चुका है और हमने उसको अर्ली डिटेक्ट करना है। अर्ली डिटेक्ट करके हमने उसको फिर प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट हम देंगे। डिटेक्ट करने के बाद वी कैन गो फॉर टोकोलिटिक एजेंट्स, एंड टोकोलिटिक एजेंट्स क्या करते हैं? जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उसको कम करते हैं, ठीक है, सुप्रेस करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस को, ठीक है, रिलैक्स करेंगे यूट्रस को टोकोलिटिक एजेंट्स। देन नेक्स्ट कम्स टर्शरी केयर। टर्शरी केयर इंक्लूड्स टू रिड्यूस द पेरिनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी आफ्टर द डायग्नोसिस, ठीक है। मतलब कि हमें पता चल चुका है कि दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम प्रीटर्म लेबर एंड वी कैन नॉट प्रिवेंट इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे?
यूज़ ऑफ वी कैन गो फॉर यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम क्यों यूज़ करेंगे, ताकि क्योंकि फीटस जो है वो अब हमें डिलीवर करना पड़ेगा 37 वीक्स से पहले, ठीक है। उस कंडीशन में वी आर सपोज टू वी आर इन अ नीड ऑफ यूजिंग अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हेल्प्स इन फीटल लंग मैच्योरिटी, ठीक है। इसलिए हम इसको किस में रखेंगे, टर्शरी केयर में, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम प्रीटर्म लेबर एंड वी कैन नॉट प्रिवेंट इट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं एंड दैट विल बी इंक्लूडेड इन टर्शरी लेवल केयर। Then seek regular prenatal care, that is the method of prevention. Then eat a healthy diet, gain weight wisely, ये सारी चीज़ों के लिए हम एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को। Then avoid risky substances, जैसे कि कोकीन अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्मोकिंग नहीं होना चाहिए, अल्कोहल कंजप्शन नहीं होना चाहिए। Then consider pregnancy spacing, like there should be a gap of 3 years between one and another pregnancy, ठीक है। सो बी कॉशियस व्हेन यूजिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, बिकॉज अभी बताया आपको इफ द वुमन हैज़ टेकन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, है ना, फॉर दिस प्रेगनेंसी, सो इन दैट केस वन शुड बी कॉशियस व्हेन दे आर कंसिडरिंग दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सो वन शुड बी कॉशियस विद दैट। देन टेकिंग प्रिवेंटिव मेडिकेशंस हु हैज़ शॉर्ट सर्विक्स, ठीक है। सपोज अ वुमेन इज़ हैविंग अ शॉर्ट सर्विक्स बाय बर्थ, ठीक है, एंड शी इज़ प्रेग्नेंट, तो जब अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चल जाता है सर्विक्स की लेंथ, और सर्विक्स की लेंथ नॉर्मल आपको बताया है मैंने, दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर्स। सो इफ़ दैट पर्टिकुलर वुमेन इज़ हैविंग अ शॉर्टर सर्विक्स, देन पहले से ही उसको हम प्रिवेंटिव मेडिसिन दे सकते हैं, लाइक प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी टू सम एक्सटेंट, राइट। Then restricting the sexual activity, we will advise the patient to restrict sexual activity. Then limiting certain physical activities, like over exertion नहीं करना है, heavy lifting नहीं करनी है ना, वो सब. Then managing chronic conditions such as diabetes mellitus and increased blood pressure. So if the mother is having diabetes mellitus or having hypertension during pregnancy or before pregnancy also, then we can advise her to maintain the levels to normal during the course of pregnancy, right. So by all these measures we can prevent a woman from undergoing preterm labor. Then next है प्रिवेंशन हो गया, अब है अरेस्टिंग प्रीटर्म लेबर, है ना। दूसरे में क्या था, दूसरा हमारा मैनेजमेंट का क्या था प्रिंसिपल, कि अगर हम अरेस्ट कर सकते हैं उसको, अरेस्ट कैसे कर सकते हैं, बाय गिविंग एडवाइसिंग बेड रेस्ट टू द वुमेन एंड वी विल एडवाइस हर टू लाई इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इससे क्या होगा, वीनो केबल कंप्रेशन जो है वो भी कम होगा। देन एडिक्वेट हाइड्रेशन के लिए बोलेंगे मदर को टू मेंटेन एडिक्वेट लेवल ऑफ हाइड्रेशन। Then we can put the mother on prophylactic antibiotic to prevent infection. Then arrest करने के लिए जो मेन चीज़ हमें चाहिए दैट आर टोकोलिटिक एजेंट्स, और टोकोलिटिक एजेंट तो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल में फॉर अरेस्टिंग द प्रीटर्म लेबर, ठीक है, दैट आर टर्ब्यूटलिन, इंडोमेथासिन एंड निफेडिपिन, ठीक है। सो दीज क्लास ऑफ ड्रग्स आर ऑल्सो एक्टिंग एज टोकोलिटिक एजेंट्स व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ऑब्स्टेट्रिक ड्रग्स, ठीक है। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी जो है दैट इज़ एडवाइज्ड इफ़ द प्रेगनेंसी इज़ लेस देन 34 वीक्स। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हम क्या देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, हाइड्रोकॉर्टिजोन हम देते हैं टू इंक्रीज द फीटल लंग मैच्योरिटी एंड इट इज़ गिवन व्हेन इट इज़ गिवन इफ़ द प्रेगनेंसी इज़ लेस देन 34 वीक्स, क्योंकि तब तक फीटस की जो लंग्स होती हैं मैच्योर नहीं होती हैं, एंड वी आर गिविंग हाइड्रोकॉर्टिसोन विच इज़ अ क्लास ऑफ ड्रग दैट बिलोंग्स टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्लास, ठीक है। सो दैट हेल्प्स इन फीटल लंग मैच्योरेशन एंड इट रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ दिस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज, ठीक है। देन रिस्क क्या हो सकते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी से, देयर आर चांसेस ऑफ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड देयर कैन बी चांसेस ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, क्योंकि ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं ये ऑपोजिट काम करते हैं, है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड इंसुलिन। देन नेक्स्ट आता है अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। अब क्या है, हम
प्रिवेंट भी नहीं कर पाए और उसको अरेस्ट भी नहीं कर पाए, इन दैट केस वी आर सपोज टू मैनेज द केस एज इट इज़, ठीक है। सो हमारे दो प्रिंसिपल इसके अंदर रहेंगे। नंबर 1 इज़ टू प्रिवेंट बर्थ एस्फिक्सिया एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, दैट विल बी द फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड अनदर प्रिंसिपल विल बी टू प्रिवेंट बर्थ ट्रॉमा, मतलब स्किलफुली हमने जो है डिलीवरी कंडक्ट करनी है। सो अब इसे हम स्टेज वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज में अगर पेशेंट है एंड वी आर नॉट एबल टू अरेस्ट और प्रिवेंट द कंडीशन, तो हम उसे मैनेज करेंगे फर्स्ट स्टेज में कैसे। विल पुट द पेशेंट टू बेड टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। देन टू इंश्योर एडिक्वेट फीटल ऑक्सीजनेशन स्ट्रॉन्ग सिडेटिव्स आर अवॉइडेड, ठीक है। फीटल ऑक्सीजनेशन मेंटेन रहे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से डिलीवरी के टाइम पे ना हो, तो हम स्ट्रॉन्ग सिडेटिव्स जो है पेशेंट में यूज़ नहीं करेंगे। देन एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इज़ ऑफ चॉइस, ठीक है। सो we can ask the patient whether she is willing for epidural analgesia to relieve the level of pain. Then labor should be watched by intensive clinical monitoring, ठीक है। जो लेबर होगी और पेशेंट को हम उस पर लगाते हैं, कार्डियोटोपोग्राफी पे लगाएंगे, ठीक है, और एनएसटी भी करते हैं टू चेक like with contractions whether the heart rate of the fetus is accelerating or deaccelerating, तो वो हमने चेक करना है थ्रू आउट द लेबर। देन इन केस ऑफ डिले सी सेक्शन शुड बी परफॉर्म, ठीक है। हमने पार्टोग्राफ मेंटेन करना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल मेंटेन द पार्टोग्राफ एंड इफ लाइक देयर इज डिले इन द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट स्टेज देन वी कैन प्लान फॉर सी सेक्शन, राइट। सेकेंड स्टेज में आपका आ जाता है द बर्थ शुड बी जेंटल एंड स्लो टू अवॉइड रैपिड कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन ऑफ द हेड, ठीक है। सो द डिलीवरी शुड बी कंडक्टेड इन अ जेंटल एंड स्लो मैनर। एपिसियोटमी हम दे सकते हैं इफ़ द मदर इज़ प्राइमरी पैरा, राइट। सो that can be given under local anesthesia. Then tendency to delay is curtailed by low forceps. Routine forceps is not indicated, right? तो क्योंकि forceps के साथ क्या है, why it is not indicated, because forceps can lead to perineal injuries if they are not applied in a correct manner. So the cord is to be clamped immediately, ठीक है। cord हमने इस केस में immediately clamp करनी है, ठीक है, to prevent hypervolemia and hyperbilirubinemia. Then shift the baby to intensive neonatal care unit under the care of neonatologist, ठीक है। सुपरवाइज करेंगे उस बेबी की कंडीशन को कौन, नियोनेटोलॉजिस्ट। सो इसलिए बेबी को हमने जो है इंटेंसिव नियोनेटल केयर यूनिट के अंदर जो है वो शिफ्ट कर देना है, बिकॉज द बेबी इज़ प्री टर्म। देन इमीडिएट मैनेजमेंट क्या करेंगे, कॉर्ड हमने इमीडिएटली क्लैम्प करनी है, क्विकली क्लैम्प करनी है इस केस में। वाई, टू प्रिवेंट हाइपरवोलेमिया एंड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। देन द कॉर्ड लेंथ इज़ केप्ट लॉन्ग, जो कॉर्ड की लेंथ रखनी है हमने फीटल साइड पे, दैट शुड बी लॉन्ग इनफ सो दैट इट कैन बी यूज फॉर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन अगर बेबी जो है वो जॉन्डिस डेवलप करता है, ठीक है। द ईयर पैसेज शुड बी क्लियर्ड ऑफ म्यूकस, सक्शनिंग करनी है बेबी की, एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन देनी है फॉलोइंग बर्थ। ये सारे प्रोसेस कब है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड फॉलोइंग इमीडिएटली फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। सो एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन पे रखेंगे बच्चे को। देन एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ विटामिन के 1 mg गिवन, बच्चे को देते हैं ना वेस्ट्रस लेटरलिस पे मसल के अंदर, IM इंजेक्शन देना है, दैट इज़ 1 mg, ठीक है, 0.1 mg सॉरी, ठीक है। देन प्रिवेंट हैमरेजिक मैनिफेस्टेशंस, राइट। सो द बेबी शुड बी रैप्ड इंक्लूडिंग हेड इन अ स्टेराइल वार्म टॉवल। उसके बाद बेबी को हमने अच्छे से रैप कर देना है, राइट। तो ये सारी केयर हमने कब देनी है, फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, अगेन आई एम समराइजिंग, कॉर्ड जो है इमीडिएटली क्लैम्प करेंगे, ठीक है। देन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए कॉर्ड जो है थोड़ी सी हम लेंथ में थोड़ी लॉन्ग कट करेंगे। देन एयर पैसेज जो है दैट शुड बी क्लियर्ड बाय सक्शनिंग, एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन देना है, विटामिन के देना है हमने 1 mg IM वेस्ट्रस लेटरलिस मसल में, ठीक है, बेबी की। देन द बेबी शुड बी रैप्ड इंक्लूडिंग द हेड इन अ स्टेराइल वार्म टॉवल। देन नेक्स्ट कम्स लास्ट है ये, दैट इज़ प्रोग्नोसिस, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोग्नोसिस ऑफ प्रीटर्म लेबर, सो दैट इट रिजल्ट्स इन हाई पेरीनेटल मोर्टेलिटी एंड पेरीनेटल मॉर्बिडिटी। सो ये हाई रहती हैं चीज़ें, लेकिन अगर इंटेंसिव न्यूनेटल केयर यूनिट में अच्छी फैसिलिटीज़ है,
ठीक है। और बेबी का जो बर्थ वेट है दैट इज़ बिटवीन 1000 to 1500 ग्राम। तो जो सर्वाइवल रेट होते हैं बच्चे के दैट आर मोर देन 90%, ठीक है। एंड विद द यूज़ ऑफ सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट जो होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, लंग्स में, ठीक है। सो बाय विद द यूज़ ऑफ सर्फेक्टेंट सर्वाइवल रेट ऑफ इन्फेंट्स बॉर्न एट 26 वीक इज़ अबाउट 80%, ठीक है। क्योंकि हमने बोला है कि 34 वीक से पहले अगर डिलीवरी हो रही है तो हमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो देने होते हैं सो दैट जो फीटल की जो लंग्स हो वो मैच्योर हो जाएं, ठीक है। सो सर्फेक्टेंट भी जो होता है वो लंग को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। सो इफ वी आर गिविंग सर्फेक्टेंट टू द न्यू बॉर्न एट 26 वीक्स, बॉर्न एट 26 वीक, ठीक है, उसके अंदर भी सर्वाइवल रेट जो है विद द यूज़ ऑफ सर्फेक्टेंट हैज़ शोन गुड सर्वाइवल रेट लाइक मोर देन 80%, राइट। सो दिस इज़ अबाउट प्रीटर्म labor. I hope this revision session is now clear to all of you, but still if you are having any doubt you can ask me anytime. Please feel free to ask questions, right? Thank you so much for listening.